do the service. So what was the tipping point? If we can hear it from him, please. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And if I tell you, when I decided to enter into venture capital or angel investments, so it was like it took me 2 inches to understand, or I can say myself like a 2x failed entrepreneur. Okay. While I was working on an idea, okay, I thought, okay, this is not going to work, and it is also good to realize very early, fail big, fail fast. So that's the approach of building startups should be. As Okay. well. You could not be taking a very long time. I mean, you have to. I mean, the perseverance is one such trait we always look Okay. in founders and entrepreneurs. But ultimately, you should be understanding if the certain idea is not viable. So you should be good to pivot. If I tell you the Animobi story, right? So they become big after they made a pivot, and they were the first unicorn from India. Like Okay. post 2010, otherwise we had unicorn as well before that. So this is something like it took me to fail entrepreneurship journey, and then I realized, okay, I can help other founders, entrepreneurs as well. And I also realized that the access to capital is the one big pain and issue that entrepreneurs feel at that stage. And this is Okay. how I entered, okay, let me solve for it. That was the idea. Let's solve for the access to capital for the founders, and fundraising should be easy for founders. And this is why I entered into being coming into innovation side of it, incubation side of it, then coming into the venture capital side of it. Okay, great. So I think that was a great input, as you can see here. That sometimes even when you fail, so we have failed 2 times and then you learn from it. So there's a lot of learning which you get when you are failing, and that is, I think, something that really takes you and makes you motivated. So when you think that okay, capital was the need of the hour, and you are not getting that capital, so you said okay, I'm going to solve this problem for others. I think that's very fantastic. So thank you so much for your input. So moving on to you, sir. Okay, so we like to ask your journey, your story. If you can maybe tell to the young generation here, maybe in say a minute or so, 2 minutes, what was your journey of becoming an entrepreneur? And now you all have come here to inspire all of us, in fact, as well. So if you can please share your thoughts with all of us. Okay, so thank you so much. मैं ना बहुत बेसिक से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत ही क्यूरियोसिटी माइंड से आए हुए हैं यहाँ पे. तो जब मैं स्कूल में था तब मेरा जर्नी शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का. हाउ इट स्टार्टेड इज अ वेरी सिंपल स्टोरी. एज आई टोल्ड यू कि मैं प्रॉब्लम्स पहले देख रहा हूँ, राइट. तो मैंने देखा कि जो फ्रंट बेंच पे जो बच्चे हैं और जो लास्ट बेंच पे बच्चे हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है नॉलेज का. फ्रंट बेंच वाले बच्चे स्टडी से बहुत ज़्यादा, और बैक बेंचर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और शायद कह सकते हैं वो दूसरे एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है. तो जब एग्ज़ाम आता था ना, तो लास्ट बेंचर्स जो थे वो भागते थे नोट्स के लिए, पेपर्स के लिए, राइट. तो चाहिए होता था क्विक सॉल्यूशन. जबकि जो फ्रंट बेंचर्स एकदम रिलैक्स रहते थे अपने साथ, क्योंकि उनको सब पहले से पता होता था. तो मैं बीच में बैठता था कहीं पे. तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि फ्रंट बेंचर्स से नोट्स लिखवाते हैं, उसको पब्लिश करते हैं और बैक बेंचर्स को भेज देते हैं. तो इज़न्ट इट अ सिंपल आइडिया, है ना. एक सिंपल सा प्रॉब्लम ढूंढा, उसको सॉल्यूशन में एग्जीक्यूट कर दिया, और वो ipchap.com मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर में. और वो इतना हिट हो गया था कि वो पूरे IP यूनिवर्सिटी में इट बिकम्स अ मेजर सक्सेस. और मैंने जब शुरू किया तो एक सिंपल सा स्ट्रीम पकड़ा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. तो आप भी कोई भी सिंपल सी एक चीज़ जो कि प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अपने आसपास लाइफ में, उससे शुरू करके कर सकते हैं. एक और छोटी सी स्टोरी अगर set permit. Yeah, definitely. So you are listening to stories that will inspire you. So please let us have his thoughts, please. Thank you so much. I think आप लोग सुनना चाहते हैं एक और छोटी सी स्टोरी. Yes, sir. I'm sure everybody loves to hear the stories, right? Okay, all right. So after closing this venture, ये venture बहुत सक्सेसफुल रहा था. It went till हमारी पूरी कॉलेज की फीस 5 फाउंडर्स थे. 5 जो दोस्त एक साथ चाय पे बैठते थे वो सब फाउंडर्स थे, और सबकी कॉलेज फीस, सबकी ट्यूशन और घूमने वूमने पार्टी की सब फीस हमने निकाल दी थी इस वेंचर से. लेकिन ये सब नहीं करना होता है, इसीलिए बंद हो गया वेंचर. उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब आपको सीरियस करेंगे. तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है जब स्टार्टअप कभी बंद होता है और नया स्टार्टअप आप खोलना चाहते हो. तब आई हैव ए हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली एंड वॉकिंग. तो मैं जॉग करता था. तो जॉग करते करते मैं देखता था कि यार बहुत सारे बैनर्स लगे रहते थे स्ट्रीट्स पे, एंड दीज बैनर्स आर नॉट मेकिंग सेंस, क्योंकि ये पूरे समय ऐसे लगे हुए हैं, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा. बट जो इसको प्रिंट कर रहा है
वो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में, राइट? तो मैंने सोचा कि लेट्स डू वन थिंग, इनको ऑडियंस दे देते हैं। तो मैं जब जॉग करके पार्क जाता था तो इनकी फ़ोटोज़ खींच लेता था। जब पार्क से घर आता था, जब मैं प्री शेक लेता था अपना, राइट, जब मैं पानी वानी पीता था, तब मैं इनको कॉल करता था ये बोलने के लिए कि आपकी एडवर्टीजमेंट के लिए मेरे पास एक नया ऑफर है। और ऑफर क्या था वो भी मैंने जस्ट थिंक आउट ही किया था। मैंने कहा कि जितने भी रिक्शाज चल रहे हैं उन्हीं रिक्शाज के पीछे मैं आपका वो बैनर वहाँ लगवा दूंगा, इन रिटर्न आप मुझे कुछ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दे देना। तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट बिकम वेरी वेल। मैं हर मंथ उस वेंचर से लगभग 2 to 3 lakhs प्रॉफिट कमा रहा था विद इन फर्स्ट मंथ ओनली। इट्स सच अ बेसिक नीड जो कि उन इन्वेस्टर्स, जो कि उन एडवर्टीजमेंट्स वालों को चाहिए थी शायद। तो मैंने उनको सिंपल ही बोला था कि आप कितना पैसा लगाते हो एक बैनर को लगाने में और कितनी जगह लगाते हैं। तो उनका एस्टिमेशन ऐसे ही था 40,000 50,000। तो मैंने कहा आप एक काम करो, वो 40-50 मुझे दो और मैं ई रिक्शा में लगाऊंगा और आपको मैं हर मंथ फोटोज दूंगा कि ई रिक्शा कहाँ घूम रहा है। उसके लिए मैंने ई रिक्शा वालों से बात कर ली, उनका आधार कार्ड ले लिया एंड अगेन ई रिक्शा वालों को थोड़ा मोड़ा पैसा दे दिया और ज़्यादा पैसा खुद रख लिया। ठीक है, ऐसे ही करना होता है बिजनेस में, ठीक है? क्योंकि मुझे और भी कॉस्ट निकालनी थी यार। आई हैव टू पे फॉर माई सेल्फ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना मैं मेहनत मैं अपनी कॉस्ट तो निकालूंगा ही पहले, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज़रूरी है बने रहना। मैं जॉब करता जाऊँ, मैंने स्नीकर्स खरीद ली बहुत कॉस्टली। तो ऐसे करके मैंने अपने ऊपर काफ़ी खर्च किया। फिर मैंने जितना भी पैसा था बहुत डबल एक्स रिटर्न मैंने दिया एडवर्टीजमेंट्स को। पूरे रोहिणी में रहता था मैं, तो इट बिकम्स वेरी हिट की एडवर्टीजमेंट करानी है तो इन्हीं से करानी है। तो दिस इज माय सेकंड वेंचर, बिकम्स वेरी सक्सेसफुल। बट अगेन उसके बाद और भी बहुत मौके मिले तो मैंने उससे बड़े भी चीज़ें की हैं, बट दैट इज माय स्टोरी टुवर्ड्स यू। आई थिंक इट इंटरेस्टेड यू somehow, right? Sure, absolutely. Thank you so very much. Yes, definitely. Thank you, applause. अच्छा ये बताइए, बिजनेस में पैसा कमाना अपने लिए बनाना सही है गलत है? सही है। Absolutely right. See the thing is, if you will earn the money, if you will have the amount of money, तभी आप आगे उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। तभी आप जो अभी आपने सैमसंग को देखा, how they have been able to do this as a corporate social responsibility. Obviously they have the money to spend. आज वो 1.5-2 करोड़ बांट रहे हैं कि भाई आइडियाज को लाओ, because they have made a business, they are driving the profits, so therefore profit making is very important in the businesses as well. तो गलत बात नहीं है, पैसा कमाना बनाना businesses is very important. So thank you so very much. और अच्छा moving on to you sir. आपकी अगर छोटी सी जर्नी अगर शॉर्ट में लोगों को पता चल जाए, तो सम एंड लर्निंग ड्यूरिंग योर जर्नी, क्या आपके पास ड्रॉबैक्स आए? बिकॉज मैं जानता हूँ कि कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जर्नी जो होती है आसान नहीं होती है। इट इज अ वेरी टफ थिंग टू स्टार्टअप एंड देन सस्टेनेबिलिटी इज द मेन थिंग। वो कहते हैं ना स्टार्ट तो 100% करते हैं एंड सर सक्सेसफुल कितने होते हैं एवरेज? 1%, 10%. Yeah, so thing is, see 1%. As you can see, so low अगर startup करते हैं तो 1% is the one who is able to succeed and take the startup to the 3 years, 5 years, 10 years and maybe for long time. So let us hear from you, sir. Thank you. सर जैसे अनुराग भाई ने बोला, अपना भी फॉलो द मनी एक सबसे पहली लर्निंग थी जो मैंने सीखी थी। आई कम फ्रॉम अ बनिया बैकग्राउंड। हाउ मेनी बनियास इन द हाउस? ठीक है, तो बचपन से धंधा सीखा है, पैसा देखा है, यही सब चीज़ें देखी थी। मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट जर्नी क्या थी, मेरे टाइम पे रितेश अग्रवाल आए थे मार्केट में नए। हमने देखा था कि अरे इतने $1 मिलियन उठा लिए, अपनी उम्र का कोई लड़का है, तो हमें लगा हम भी कर लेंगे, मतलब वो कर सकते तो हमें भी पैसा चाहिए। Yes, yes. तो हमने कहा स्टार्टअप करते हैं। थोड़ा सा बस चेंज क्या किया हमने प्रोडक्ट बनाने से पहले बेच दिया था सर। हम उतर गए मार्केट में, हमने कहा प्रोडक्ट तो बनता रहेगा, पहले बेच देते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्न, दैट सेल बिफोर यू बिल्ड। इफ यू कैन डू दैट, लेट योर कस्टमर्स पे द मनी, इन्वेस्टर्स की आपको जरूरत ही नहीं है। कैन आई टेल यू अ वेरी सिंपल आइडिया, जैसा अनुराग भाई ने बात करी। वी वेंट टू कॉलेजेस। मेरा आइडिया बहुत सिंपल था उस टाइम पे कि आई वॉज एबल टू डू समथिंग फॉर माई ओन, क्या मैं और लोगों की भी मदद कर सकता हूँ। मैं कॉलेजेस में गया, मैंने कहा मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ और इस कम्युनिटी का अगर आपको हिस्सा बनना है तो ये 100 रुपये का पास है, ये आप खरीद लो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और हमने वो 6 दिन में 1200 बच्चों को बेच दिया, तो 1.25 लाख रुपए का सीड फंड हमने वहां से इकट्ठा किया। एंड देन वी फिगर्ड आउट हाउ टू हेल्प दीज पीपल, व्हाट टू डू, एंड दैट्स एवरीथिंग, दैट्स नेक्स्ट स्टेप। दैट्स हाउ माय फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्टेड। एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू व्हेन आई स्टार्टेड माय इन्फ्लुएंसर जर्नी, इट वाज वेरी सिंपल। पीपल टेल अस डोंट फॉलो द मनी, टारगेट्स के पीछे मत भागो, फॉलो योर पैशन, ये ढूंढो। आई डू नॉट जनरली बिलीव इन दैट। Okay. आपको समझना पड़ेगा कि मेरा स्किल सेट और पैशन इंटरसेक्ट भी करता है या नहीं करता, क्योंकि आखिर में रोटी कमाने का पैसा तो जीवन, रोटी तो खानी ही है।
Absolutely. So finding that money, figuring out those targets, and I am someone who love targets. Target नहीं सेट होगा तो मजा ही नहीं आएगा. तो सिंपल सी चीज थी. And one of the things while content journey that I learned was there's this fantabulous book called Steal Like an Artist, which talks about everything is inspired. जो भी कोई आर्टिस्ट कह रहा है ना मेरा ओरिजिनल है, 10 में से 9 लोगों को या तो पता नहीं है कि ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है, या फिर एक इंसान बताना नहीं चाह रहा. बिकॉज हर कोई दूसरों को देख के सीख रहा है. क्रिएटिविटी का मतलब यही है, दो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आप पुट इन कर रहे हो. So that's what we did. We started learning from every other influencer that was there. Okay. And we started copying and mixing जो भी हम कर सकते हैं. Okay. So those were the two biggest learnings, that follow the money, sell before you build, and get inspirations, copy things. Because अगर तुम्हारा tier 3 में बैठे और अभी तक वहाँ पे गाड़ी नहीं बनी है तो तुम नई गाड़ी स्क्रैच से नहीं बनाओगे. तुम tier 1 की गाड़ी लाओगे, उसे ब्रेक डाउन करोगे, रिवर्स इंजीनियर करोगे, फिर बिल्ड करोगे. तो ओरिजिनलिटी का कीड़ा जो ह्यूमन ईगो से आता है ना, उसको छोड़ दो और बेसिक धंधों पे, बेसिक फंडामेंटल्स पे, फर्स्ट प्रिंसिपल से वहाँ से चीजें सोचो. Okay, excellent. Sure. Just to add on that, I just remember the quote by Steve Jobs: "Good artists copy, great artists steal." Great, great, very nice. Thank you, sir. So over to please. Thank you for the presentation here. I am going on to Dr. Anand sir. सर ये जो न्यूजन IDC है, मानव रचना का जो है इंक्यूबेशन सेंटर है, तो ये प्लीज टेल टू स्टूडेंट्स दैट हाउ दे ऑल कैन बेनिफिट with such a good, we have a center here. So some thoughts for students. So in Manav Rachna, in fact, it is a place whereby you can nurture your passion. हम किस तरह से आपकी मदद करते हैं? अगर आपके पास कोई ब्राइट आइडिया है, तो मानव रचना में आप उस आइडिया को पिच कर सकते हैं. स्क्रीनिंग कमेटी उसको डिसाइड करती है और उसके बाद आपको 2.5 लाख की फंडिंग मिलती है. सिर्फ फंडिंग ही नहीं मिलती, आपको एक मेंटर मिलता है, आपकी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं, आपका आइडिया पेटेंट कराने के लिए आपकी मदद करते हैं. एंड बिसाइड दैट यू गेट ऑफिस इन कैंपस ओनली. आपको कैंपस में जगह मिलती है. एंड वंस योर प्रोटोटाइप इज रेडी, सो वी हेल्प यू getting connected with the investor for a further scaling it up. We get you also the industry expert. तो ये सारी सुविधाएं जो हैं मानव रचना में आपको प्राप्त होती हैं. Okay, thank you, sir. So as you can see, students, जब already आपके पास यहाँ पे वो कहते हैं कि घर में ही आपके पास सारा arrangement है. So when those who are the students of मानव रचना and बाहर से भी encourage करते हैं, the thing is कि आपके पास ये जो setup आपके पास है already, so you all can utilize it to your maximum benefit, and you can start your journey during your academic itself. In fact, जो अगर आप देखें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, which has been launched by the Ministry of Education, उसमें ये कहती है कि ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ योर एजुकेशन, जैसे आप अपनी डिग्री कर रहे हैं, तो 6 महीने के लिए अगर आप अपने स्टार्टअप पे काम करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं. और जो क्रेडिट सिस्टम है, आपको उसके लिए आपको वेटेज दी जाएगी, एंड यू हैव टू गिव ओनली द फाइनल एग्जाम फॉर दैट सेमेस्टर. तो ये सब जो सहूलियतें अगर आप देखें तो काफ़ी साल पहले नहीं थी. So I think this country में by this new education policy, it is helping and nurturing the system so that you all can become the entrepreneurs, those who are aspiring to become entrepreneurs. So all that nurturing ecosystem is what provided not only by the private institutions but even by the ministry and the government of India as well. Right? Thank you so much, sir. Moving on to Mandeep sir. I would like to tell you that even if you are not from a Manav Rachna, आप कहीं से भी हो, किसी इंस्टीट्यूशन से भी हो, you can come. We are a nodal center and we can help you in nurturing your passion. Thank you, sir. So Manmeet sir, आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया that FITT is kind of helping and enabling. Any other some tips you would like to give to the students? कैंपर की आपने बात करी कि सब्स्टिट्यूट करना और नई तरह से प्रोडक्ट को करना. So any other tips that you would like to give to the students ki how they can generate ideas, because we believe that for them right now the first stage is the ideas, and even जो Samsung ने बात करी है solve for tomorrow. So what they are asking you to submit in that form is submit your idea in 200 words. तो जो आपकी starting है, जो आपकी entrepreneurship journey की starting है, that is from the idea itself, and from there you have to nurture the idea to next step. If you can throw some light on that, sir. Sure, sir. So I think Scamper is one of the technique where you can sit together and work, but it's a team work. Okay, you can't be alone doing Scamper and working on it. Other than that, what
in terms of Samsung or wherever you are pitching your idea, what all is required is the most important part. You have to understand the pain point of customers. So we talk about design thinking. Design thinking is one of the sessions which we do with startups, where you empathize with the customer. So we always tell to startups that, or to students before starting, और मे बी लेट्स से कि आपने बोला मुझे प्रोटोटाइप बनाना है सर, मुझे 20,000 रुपये दे दो, तो मैं आपको ऐसे 20,000 रुपये नहीं दूंगा. मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आपने मार्केट सर्वे कहाँ किया है, आपका कस्टमर कौन है, तो मैं आपको फील्ड में भेजूंगा टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर. सो फर्स्ट यू विल गो अहेड विद सम क्वेश्चन आया, तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन बनाइए, कि आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या, ठीक है. सो वी विल हेल्प यू आउट इन दैट कि आप क्या क्वेश्चन पूछें विच इज रेलेवेंट, विच कैन गिव यू एग्जैक्ट आउटपुट. And then accordingly आप वो क्वेश्चन बना के you will move to 50, 100, 200 customers. And then I will ask you, तो एक एक्टिविटी है, मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड इन गूगल पे भी दिख जाएगी, लिखेंगे तो $50 एक्टिविटी, $5 एक्टिविटी, ऐसे हम कराते हैं टिप्स में कि लेट्स से मैंने एक्टिविटी में ग्रुप बनाया, मैंने आपको बोला कि 100 रुपये इकट्ठे करिए और अब 100 रुपये में कुछ भी खरीदिए और उसको बेच के आइए. अब लेट्स से मैंने एक एक्टिविटी कराई थी आज से 7 साल पहले 2014-15 में, जिसमें हमने 100 रुपये दिए थे हर एक ग्रुप को, ठीक है. इट वाज इन ग्रेटर नोएडा रीजन, और मैंने सबको बोला था कि कुछ भी लो और बेच के कौन सी टीम सबसे ज्यादा पैसे बनाएगी. सुबह एक्टिविटी शुरू हुई है, शाम को खत्म होगी 4 बजे, और आप कहीं भी जाओ, आपकी मर्जी है, रोड पे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ. और मैंने इस एक्टिविटी के लिए फिर स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर 1 डे इज नॉट इनफ, तो मैंने कहा ठीक है आपको 2 दिन दिए जाते हैं, 3 दिन बाद हम दोबारा मिलेंगे इस पे. So some of the students are from Delhi, some are from Noida, तो सबने अपने अपने एरिया में देखा. मैंने उनको बोला कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है, चाहे आप 100 रुपये में वही खरीदो और उसको 1000 रुपये में बेचो. तो एक टीम ने फ्लावर्स लिए और रेड लाइट पे जाके, और जहाँ पे लड़के लड़की बैठे होते हैं वहाँ पे जाके उसको बेचना शुरू किया. एंड दे बॉट अराउंड 5 रुपये का एक रोज, और उन्होंने वो 20 रोज खरीदे कहीं से जहाँ पे उनको पता होगा सस्ते मिलते हैं. एंड दे सोल्ड इट इन 2 days, और उन्होंने उस 100 रुपए से उन्होंने एक एक रोज 500, 300 रुपए का बेचा है और 3000 रुपए बना के आए थे. सो वी गिव यू दैट प्रैक्टिकल कि आप जाइए और टफ देखिए कितना है, और उन्होंने ये 2 दिन लगातार एक्टिविटी करी है, ठीक है. एंड आई ऑलरेडी गिव देम दी परमिशन कि कॉलेज नहीं आना है, अटेंडेंस हम देख लेंगे, बट आपको ये एक्टिविटी करके आनी है और कौन सबसे ज्यादा पैसे कमा के आएगा. So there are like different ideas. That is one of them जो हम एक्टिविटी करते हैं, जिसमें मैं मे बी आपको बोलूँ कि आप मैगी बना के बेचो, कुछ भी whatever. So you have to see कि कितना पिंच है कस्टमर की पॉकेट से पैसा निकालना. It's not so easy. कोई आपको ऐसे 1 रुपए भी नहीं देगा. It's very tough. Okay, all attention please. Requesting all students to pay attention please. Thank you. You have to understand that by doing these activities, we open mind of the students, जिसमें आपको पता चलता है कि सेल्स करना और ये सब करना कितना टफ है, बिकॉज दैट्स ऑल एक्टिविटी यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट ऑन योर प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी विच आई डिड 7 years बैक. अब तो मेरे ख्याल से बहुत लोग कराते भी हैं ये ड्यूरिंग देयर सेशन. एंड दैट कम्स द डिजाइन थिंकिंग वेयर यू एम्पैथाइज विद योर यूजर, विद योर कस्टमर, एंड देन अकॉर्डिंगली यू बिल्ड योर प्रोडक्ट. उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं. मुझे कुछ लगता है मैं बना रहा हूँ बहुत अच्छा है एंड आई लव इट, बट मे बी मेरे कस्टमर को वो चाहिए नहीं, तो अगर वो पैसा ही नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा बना के. सो नेवर लव योर आइडिया, जितनी जल्दी हो सके पिवट है. Okay, thank you sir, thank you. अच्छा, how many of you students आपने सुना है जो दिखता है वो बिकता है? कहीं सुना है आपने? अच्छा, किसने सुनाया था?